جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، وارث خان بول رہے ہیں. جی وارث خان صاحب تسی کتنے بول رہے ہو؟ جی میں لوروں بول رہے ہیں. جی لاہور تنوں اسی اپنے پروگرام سے ویلکم کہنا ہے. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ تو ہم سب نو خوش رکھے. وارث بھائی آپ کی کال رکھے. وارث بھائی اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کی پہلے بھی کال آئی تھی. جی مہربانی ہے، بس میں انتظار کر رہا تھا پھر کسی وقت موقع ملے. آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کے پروگرام میں پھر پارٹیسپیٹ کر کے. یہ دیکھیے کہ رمضان شریف میں پروگرام ایسے سکین نہیں کرتا نا، آدمی کوئی دیکھتا تو ہے نہیں. صبح سے شام تک وہی لڑکے جو ڈراموں میں آتے ہیں، وہی جو ڈانس اور گانوں میں آتے ہیں، وہی جو آپ کے ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہی مذہبی پروگرام آپ کر رہے ہیں. اچھا وہی کھانے کے پروگرام کر رہے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ ابھی آپ انقلاب کی بات کر رہے تھے، یہ جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے نا، یہ انقلاب نہیں لانے دے رہا. یہاں پر ایک عجیب و غریب کلچر پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ اسلام سے دور کیا جا رہا ہے. الٹرا لبرل جسے کہنا چاہیے، الٹرا سیکولر، مور انڈین دین دا انڈینز آر، مور ویسٹرن دین دا ویسٹرن آر. دیکھیے یہ جو انگلینڈ وغیرہ میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آگے جو سیولائزڈ اپنی نیشنز کہلاتی ہیں اور تہذیبیں کہلاتی ہیں، کیا حشر کی ہے. ہمارے تو اتنے ابھی میں اس پہ بات کروں گا، اتنے صابر، شاکر اور گریٹ لوگ ہیں. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جن حالات سے ان اس حکومت نے خصوصاً ہم کو 3.5-4 سال میں ڈالا ہوا ہے، میں نے وہ پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ یورپ ہو تو سارا یورپ اس کو آگ لگ جائے. ابھی لگے گی، ابھی انگلینڈ میں لگی ہے نا، اب یہ یورپ کے دوسرے ملکوں میں، امریکہ میں بھی جائے گی. لیکن آپ کے لوگ پھر صبر شکر سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو آج ہم انہیں فالو کر رہے ہیں، ان کا میڈیا، ان کا انٹرنیٹ میں گیمز، وہ جو دن رات بچے وہ گن راٹنگ کرتے ہیں اور ٹیررزم ہمیں کہتے ہیں ٹیررسٹ، جو دن رات یہ ٹیررزم وہاں پر انٹرنیٹ پہ بچوں کو سکھاتے ہیں، پھر ٹی وی علیحدہ، پھر اس کے بعد آپ کی فلمیں علیحدہ. یہ دہشت گرد یہ لوگ ہیں جو دہشت گردی ہمارے یہاں میڈیا بھی پھیلا رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان کا اس قدر یہ اس مہینے کی مقدس مہینہ ہے کہ صبح سے شام تک، رات تک لوگوں کو عبادت کرنی چاہیے، قرآن شریف پڑھنا چاہیے. یہاں کا صبح سے آپ شروع ہو جاتے ہیں، وہی ٹی وی آرٹسٹ، وہ مذہبی پروگرام بھی ہے، پھر سارا دن کھانے سکھاتے رہتے ہیں، سارا دن کھانے سکھاتے رہتے. پھر وہ جو مذہبی پروگرام ہے نا اسی طرح دکھا رہے ہیں. بات یہ کیا بنا رہے ہیں پاکستان کو، کوئی ان کو مذہب کا لحاظ نہیں. اگر انڈیا میں کوئی وہاں ڈانس لوگ کرتے ہیں، مقابلے ڈانس کے اور گانے کے کرتے ہیں، وہ ان کا مذہب کا حصہ ہے، وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے تو آج سے اندرا گاندھی کو کسی نے کہا جب وہ 1984 میں کہ جی یہ جو ٹاپ لیس کلچر ہے اس وقت یورپ میں آیا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ہم 5000 سال سے ٹاپ لیس ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں آپ کے میڈیا والے. ان لوگوں نے انقلاب نہیں لانے دیا، یہ صرف ایک مخصوص ایک گروپ ہے، الٹرا لبرل، الٹرا سیکولر. وارث بھائی میں 1 منٹ میرا بات سنو، تم ٹراپک سے پسل گئے، ٹرین دوسرا طرف جا رہا ہے. اچھا ہمارا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح کا سچویشن اور سرکمسٹینسز ہو گیا ہے، تو تم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے؟ اب دیکھو یار، ابھی آپ بات کر رہا تھا مہنگائی کی بات کر رہا تھا. جی تو دیکھو ابھی جب بجلی کا بل جب آپ دے دیتا ہے تو آپ کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں رہتا. آپ سارے مہینہ انتظار کرتا ہے اگلے مہینے کا، اور ایک ایک پیسہ، ایک ایک بوند جیسے پانی کی، اس طرح آپ ایک ایک کوڑی کو آپ لے کے سنبھالتے ہیں کہ کیا کروں، کہاں جاؤں. نہ بس پہ آپ سفر کر سکتے ہیں، نہ ٹرین دیکھیے آپ انہوں نے بند کرا دی ہے. وہی تو بول رہا ہوں، سب کچھ دیوالیہ ہو گیا، ملک کو دیوالیہ بنا کر رکھ دیا ہے نا ہمارا. میرا تو دل روتا ہے خون کے آنسو. یقین وقع لیکن جنگ اگر خدا نخواستہ آج ہندوستان سے ہو جائے تو کمیونیکیشن لائن سب سے بڑی ٹرین کی ہوتی ہے، 3-4 ڈیفنس لائن ہوتی ہیں.
इन्होंने गाड़ियां बंद कर दी, कोई फ्रेट नहीं है। और इसी तरह PIA बंद कर दिया, उधर से नेवल के 3 जहाज उड़वा दिए। ये कहाँ जा रहे हैं इन लोगों ने? और उसमें सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप लोग जो है, आपने भी बहुत अच्छी बातें की हैं, आप लोग परेशान हैं, कौम परेशान है। और इंकलाब में आपको बताऊं, इस तरह नहीं आते, लोग निकले हुए हैं, सब दुनिया निकली हुई है। और टीवी पे आप जैसे प्रोग्राम या एक आधा और हजार, आप तो अच्छे लोग हैं। उस दिन भी मैंने कहा था पाकिस्तान लगता है आप हैं, तो बाकी आप देखिए कि सारा दिन आवारगी होती है, फाशी होती है, छोरापन होता है। एक 5 मिनट के प्रोग्राम से इंकलाब आता है, वो भी क्या, एक जमात का पॉइंट ऑफ व्यू जो है। 10 बंदे रोजाना 10 प्रोग्रामों में एक ही जमात के बैठे होते हैं। अच्छा वारिस भाई, यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या हम जो है इनकलाब के मुतहम्मिल हो सकते हैं जिस स्टेज पे हम खड़े हैं, या हमें इनकलाब के मतलब का, मकसद का पता है हम लोगों को कि नहीं? ये बिल्कुल नहीं। हमारे जो है ना जी, हम ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। बात ये है कि इनकलाब को लाने के लिए आप देखें, मैं आपको बताता हूँ कि जितना मिडल ईस्ट में जो अपहीवल हुआ वो लीडरलेस है। हमारे यहाँ पर ये है कि एक बंदा, मैं थोड़ा सा नाम है कोई सियासी जमात से मेरा तल्लुक है, एक आदमी है जो थोड़ा सा, जिसमें वो एक जिसे कहना चाहिए जो करप्शन जिस पे नहीं है। बाकी तो सारे जितने हैं मुनाफिक, टारगेट किलर, भत्ताखोर, हजारों लोगों को मार के कहते हैं मासूम है, खरबों की भत्ताखोरी करके कहते हैं मासूम है। इन्होंने PIA लुटा दी, पाकिस्तान स्टील मिल लुटा दी, रेलवे वेब, और कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हम बड़े शरीफ हैं, हमने तो कोई करप्शन नहीं की। जी हमें बताएं करप्शन कौन करता है, कैसे खत्म? बात ये है वारिस भाई, मसला ये है कि जो हमारे मिनिस्टर हैं वो तो यही कहते हैं कि करप्शन पे तो हमारा हक है, हमारा हिस्सा बनता है। तो ये हक जो है ना, ये पाकिस्तान के ये है। अच्छा आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता चलूं वारिस भाई। हजारों साल चाहिए होते हैं आजादी को हासिल करने के लिए, लेकिन 2 मीर जाफर जो है, मीर सादक और मीर जाफर, वो दिनों में गुलाम बना देते हैं कौमों को। ये है जो आपका अलमी है। लेकिन अल्लाह ताला से किसी मुसलमान मायूस नहीं होता। रमजान शरीफ का महीना है। पहली बात तो यह है कि लोगों को मैं कहूंगा कि दिन रात जो टीवी चैनल पे जो खाने के प्रोग्राम आते हैं, डांस गाने, छिछोरे लड़के उठ के डांस, ये सब पाकिस्तान के लोग इन्हें बाइकआउट कर दें, इनके प्रोग्रामों का। जब ये बाइकआउट होगा तो फिर ये जो मल्टीनेशनलाइजेशन है पाकिस्तान में, मल्टीनेशनल कल्चर बना हुआ है, इनके प्रोडक्ट खत्म होंगे जो यहूदियों के हैं और जो अमेरिकनों के हैं, जिन्होंने आपके ऊपर दिन रात बमबारी कर रहे हैं। और इनको अल्लाह ताला ने ये जो थोड़ा सा नक्शा दिखाया ना अमेरिका को, अब देखें अल्लाह ताला का मुकाफात अमल, जिस तरह इन्होंने करोड़ों मुसलमानों को मारा है। लेकिन हमारे अंदर हम मीर जाफर हैं। असल में वारिस भाई, मैं एक बात बताता चलूं, हम लोगों को वारिस भाई, अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लम की जब तक ये है स्पिरिट ऑफ रमजान, ये सिर्फ स्पिरिट ऑफ कुरान है कि लोगों को मैं कहूंगा कोई प्रोग्राम ना देखो, सादा सलीस तर्जमा कुरान शरीफ का पढ़ो, तुम हैरत ज़दा होगे जब अल्लाह का एक एक लफ्ज पढ़ोगे, और फिर तुम मुसलमान सही होगे। हमें ना कोई, आप देखिए दीनी प्रोग्राम में आपके जो मौलाना हजरात हैं बड़े अदब से, वो भी ये एक्टरों के साथ, एक्ट्रेसों के साथ दीनी प्रोग्राम वो उनके साथ शामिल हुए होते। मैं पूछता हूँ भाई ये लड़के ठीक है, बड़े अच्छे हैं, हमको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कोई अथॉरिटी है दीन के ऊपर? क्या मजहब की अथॉरिटी है जो इनको आप बैठा देते हैं? आप इनको ड्रामों तक रखें, और वो भी ड्रामों में जो कुछ दिखाते हैं ये तो वेस्टर्न से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन आजकल दिखा रहे हैं। अच्छा वारिस भाई, में लड़का लड़की घर से बाहर मिल रहे हैं। वारिस भाई, मेरा बात सुनो, मैंने सब सुन लिया, ये सारा बात तुम्हारा ठीक है, लेकिन खबर ऐसा है, वी आर डिस्कसिंग ऑन लाइक इनकलाब ना, एंड यू लाइक went on different topic। क्या मुझे बताएं क्या कह रहे हैं? टॉपिक क्या, इंकलाब की बात? अच्छा चले वारिस भाई अभी तो क्या चाह रहे हैं, मैं क्या बात करूं? नहीं वारिस भाई, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपने बहुत अच्छी बातें कही।
मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि इंकलाब लाने के लिए आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। और मुसलमान का इंकलाब, मेरी बात सुनने खान साहब, मेरी बात सुने, इंकलाब जो इस्लाम का और मुसलमान और पाकिस्तान का वो 1400 साल पहले आ चुका है। दीन हमारा एक है ना, उसमें कोई दीन ये कहते हैं ना, लुकम दीनकुम वलियुद्दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ हमारा दीन वो है जो अल्लाह और रसूल का है। बाकी जो वो दूसरा जिनको दीन अल्लाह ने कहा ना उनका दीन वो काफिरों का है। ये हमको गुमराह, असल इंकलाब ये है कि हम अच्छे मुसलमान हो जाएं हम। और मैं ये बात आपसे अर्ज करूं कि इस अल्लाह ताला ने सिर्फ आबादात की बात नहीं की है, 99% ये हकूकुल आबाद यानी कौमों की इस्लाह, कौमों के असलाह अहवाल की बात की है। उनके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। जिन कौमों पे अजाब आए उन किसी पे इसलिए नहीं आया कि तुम रोजे नहीं रखते, तुम नमाज नहीं पढ़ते, उसका साहब वो क़यामत वाले दिन लेगा। बस जिन हुक्मरानों ने, जिन कौमों ने जुल्म किए गरीबों पे, इंसाफ का मुंह फेरा, अदल नहीं किया, जिन्होंने कौमें लूट एक जुर्म अल्लाह ताला। वारिस भाई आपकी कॉल बहुत लंबी हो गई है, दूसरे लोग भी वेट कर रहे हैं। वो सजा दी, पत्थर गिराए। आप सोचिए कि पत्थर आसमान से जब गिरे होंगे, उसको ये सजा संसार की है। तो ये हमारे यहाँ अल्लाह ताला ये जो बेइंसाफी जो आप देखिए ना, ये आप फल है, 200 रुपए किलो सेब है, 200 रुपए किलो, आपका दिल जलता है। मैं वही कह रहा था, आप बिजली का बिल दे दें, आप महीने का आपको फिक्र लग जाता है। और फिर ये बिजली इतनी महंगी कर रहे हैं दिन रात। वहां पर क्या कहना चाहिए, 70-80 रुपए अगर पेट्रोल है और आप ये 40 रुपए पेट्रोल पे खाते हैं, और फिर कहते हैं हम आपको सब्सिडी देते हैं। टैक्स आप जितना देते हैं मैं देता हूँ, सैलरी पे आप दें, इनडायरेक्ट मैं दूं, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, हर दुनिया जहान के टैक्स मैं देता हूँ। अगर नहीं देते तो ये दे मेरे आप। हेलो जी वारिस भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी कॉल काफ़ी लंबी हो गई थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने जितनी बातें की बहुत अच्छी लगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप कॉल करेंगे तो मुझे ये बताइएगा कि आप इलेक्शन में कब खड़े हो रहे हैं। अच्छा, बातें वो बहुत अच्छी कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात कही कि बरतानिया और इंग्लैंड की बात कही ना, तो हकीकत बताऊँ मैं भी बड़ा खुश हूँ कि वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं। क्योंकि अगर लीबिया में हुए, मिस्र में हुए, शाम में हुए, हर जगह पे हुए, तो अमेरिका ने इंटरप्शन की, लीबिया पे बमबारी करवाई। अब इंग्लैंड में हो रहे हैं, बरतानिया में हो रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे अमेरिका। चांडियो क्यों इस तरह देख रहे हो यार? मैं देख रहा हूँ, तो देखो आपकी खुशी से भाई मैं भी बहुत खुश हो रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी पता चला, मतलब जब मैंने बोला कि मैं खुश हूँ तो तुम भी खुश हो। नहीं सही, मैं तो खुश हूँ। तो देखो ना, ये बिल्कुल सही। अमेरिका का एक इतना सा बयान नहीं आया। यही तो कह रहा हूँ, मुल्कों में होते हैं तो ये बयान देते हैं। यही तो कह रहा हूँ कि अब पता चलेगा कि वहाँ पे कोई फौज वो जाती है कि नहीं जाती। कि यो भी कुछ हुआ ना लंदन में, तो वहाँ भी तो मुसलमान मरा है ना। मरकज अली खान, अरे बुजुर्गों ने जो बोला है वो गलत नहीं बोला है। क्या बोला है? दूसरों के लिए खड्डा मत खोदो, अरे खुद गिरेगा। गिर गया। किसी ने कुछ चांडियो, हम तुम्हारे बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, कोई बयान नहीं आया है। मैं तुम हमारा बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा। लंदन में मुसलमान मरा, तुमने कुछ नहीं बोला। आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा में धमाका हुआ, कोई कुछ नहीं बोला। वो तो सलाम अलैकुम, हमारे मुल्क में आदत है, कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है। उनको मुझे मर्जी है, आज सुबह स्कूल जाता बच्चा, धमाका हो गया मोबाइल के पास, रास्ते का जाता हमारा पाकिस्तानी बच्चा। उसका तो हम नहीं पूछ सकते भाई, किससे पूछे? रहमान साहब से पूछे? नहीं पूछ नहीं सकते, बराबर के शरीक। रहमान साहब का नाम लो तो साथ में बाबा बोला करो। ऐसे रहमान साहब, रहमान बाबा बोलो, अभी वो बाबा हो गया है। सलाम अलैकुम, मैं रहमान मुनीरी की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे बात सुनो, वो भी अमेरिका में जाके बाबा हो गया है, तावीज मावीज दे रहा है। कोई तरीका नहीं है। लेकिन जो भी बात करते हो हकीकत है, सही बात की, उधर किसी ने बात नहीं की। मरकज साहब तो बस सारा हंसता था ना, कराची पे, कराची में ये होता है, कराची में ये होता है। खुदा पाक ने लंदन में भी दिखा दिया। कहाँ है अब लंदन का पुलिस, कहाँ है सारा कुछ है? कैसा हो रहा है? अपना मसला करने दो जी, क्या बात है, और करने दो, हमारा क्या है। सलाम अलैकुम। मरकज अली खान, बात सुनो, वहाँ के वो तो जो हो गया, अल्लाह ताला तो बाबा गफूर रहीम है, वो तो सब कुछ जानता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात है, उन्होंने जो डंडा मंडा खरीदा है, वो बैट बॉल वाला, बात सुनो चांडिया, वो क्या चीज़ है? हॉकियाँ खरीदी है। मैं बोलता हूँ, बात सुनो, वो सिस्टम मुझे पसंद आएगा, पाकिस्तान में भी वो सिस्टम हो।
असला मसला खत्म करो, हाकियां लो, बैट बालो, रात को उनसे चोरों को मारो, दिन को खेलो, एक टिकट में दो मजे। लेकिन बात तो ये हो गई है, वो तो पैसों को मारने के लिए होता है। अभी साई देखो, अभी उन्हें बोला है, हमारे जो मिनिस्टर है ना रहमान बाबा, उसने कहा था इस्लामाबाद के जो लेसन बने हैं वो सारे खत्म होंगे, सिंध में जो लेसन